Hey everyone, this is the problem rated 1600. So, I've already made problems from 1000 to 1400 rated, so you can all watch that. Like, I'll put the link in the description, or you can just watch it in my channel. Also, I'm starting a new mentoring sessions where I'll be teaching you CP in like a group of 5 to 10, and there would also be personal mentoring. So, I'm attaching a form in the description that also you can just fill it out if you're interested. So now let's move to the problem. So the name of the problem is infected tree, and it's a simple problem. You are given a binary tree, and basically the root is infected. So I'll just give you a live example of what the problem is. So suppose you are given a binary tree. So if you don't know what's a binary tree, for every node there can only be more, at most two children. So it can either be like this, like one child, or two child. That's a simple binary tree. So suppose you're given a binary tree, something like this. This is a binary tree because every node has like two children or one child. So so this is a binary tree. This is not a binary tree if you make something like this. This is not a binary tree. So the problem is saying that, so let's just use it. So this initial node is infected. Okay, and what happens is, so if you simplify the whole, like if you simplify the question, the problem is saying that if a root is infected, now you have two options because the infection will spread, right? So you have two options: either you cancel this particular node, or you cancel this particular node. So if you cancel this particular node, you will be saving these nodes because basically there will be a cutout, so the infection won't spread and you will be saving these two nodes, and you can't save both the nodes. So if you save that node, this particular node will get infected, and again the process follows. Now again you have two options: either save this or save that. So if you save this, this will get cancelled out, and this will get infected, and the ones which are getting cancelled out are not the ones which are getting saved. So now this simulation जो मैंने भी दिखाया, ये जो simulation है, इसमें there are only two saves. This one, ये वाला, this one and this one. You were only able to save two nodes after running the simulation I just told you. ठीक है, so this is the question. Now you have to decide like what is the maximum number of nodes you can save. What is the maximum number of nodes you can save? And you don't have to tell the simulation वगैरह नहीं बताना, बस इतना बताने कि कितने nodes you can save. You are given a binary and root is पक्का पक्का infected. It's sure. ठीक है, so now let's see what all concepts we'll have to use. We'll have to use DFS, and we'll be using DP. Sorry, DP and बस ये and DFS का तो एक फेमस कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसमें you have to calculate the depth of a node, not the depth basically कि हाँ depth like उसका नीचे से कितना डिस्टेंस है, and DP तो I'll tell you कहाँ यूज होगा. So आइडिया क्या है, मतलब कोड वे में it will be very simple. So let's just see. ठीक है, सो नाउ जब उन्होंने बोला कि हमारा ये वाला नोड जो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, ये वाला नोड है वो इन्फेक्टेड है. सो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. भाई सेम ऑप्शंस है राइट, कि ऑप्शन वन क्या है. ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन वन है इन्फेक्ट द लेफ्ट नोड. दिस इज द ऑप्शन वन. ऑप्शन टू क्या है? इन्फेक्ट द राइट नोड. ठीक है, तो अभी अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे आंसर बताओ अगर ये वाला रूट इन्फेक्टेड है, ठीक है. सो लेट्स जस्ट एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, रूट इन्फेक्टेड वन, ठीक है, इन्फेक्टेड वन बिकॉज इन्फेक्टेड रूट ले लो, इन्फेक्टेड रूट. इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम? कुछ सिंपल लेते हैं यार. सपोज आंसर, ठीक है, आंसर यहीं पे तो मैं डीपी समझेगा थोड़ा. तो इसका आंसर कैसे निकलेंगे, तो हमें क्या बोला, मैक्सिमम नोड्स को सेव करना है, तो मैक्स तो बाहर आ ही जाएगा. ठीक है, मैक्स तो बाहर आ ही जाएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शंस है. इन्फेक्ट द लेफ्ट नोड. इफ वी इन्फेक्ट द लेफ्ट नोड तो हमें बेसिकली, ठीक है, रुको एक छोटा सा लास्ट चेंज करता हूँ, इसे वन बुलाते, ठीक है, ये वन है. और थोड़ा सिंपल करता हूँ, ये रूट वन है, ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन. ओके, तो अभी इसको सिंपल करते हैं. सो व्हाट इज द आंसर if one is infected? What is the answer if one is infected equals to max of
क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? दो ऑप्शन है, राइट? लेफ्ट वाला इन्फेक्ट होगा या तो राइट वाला इन्फेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं पहले, फर्स्ट ऑप्शन का क्या होगा, तो लेफ्ट वाला इन्फेक्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट वाला इन्फेक्ट हुआ है, मतलब अभी तुम्हें उसका भी, जैसे हम अभी वन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम इस ट्री के लिए भी सेम सॉल्व करें ना, क्योंकि वन इन्फेक्ट हो गया है। मतलब एक नया सब केस बनेगा ऐसा, वो सब केस पूरा अलग होगा ना, इसको तुम्हें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें अगर रिकर्जन थोड़ा आइडिया है तो 2 4 5, क्योंकि ये तो तुम्हें इसको अलग से वापस सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए रिकर्जन कॉल किया मैंने टू को, कि टू तो इन्फेक्ट हो जा, आई विल लुक एट यू लेटर, अभी वन का सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, टू मैं डिसाइड करो कि टू इन्फेक्ट होगा, और थ्री आई एम डिसाइडिंग कि तू सेव हो, कि आई विल सेव यू। तो अगर मैं थ्री को सेव करता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा? थ्री का जो डेप्थ है, थ्री का डेप्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, 1 2 3। और सिंपली बस इतना, मैं क्योंकि मैंने जो कोड लिखा है मैंने वो ऐसे कोड किया है कि मुझे डायरेक्टली एक अरे से ये मिल जाएगा कि थ्री के नीचे कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, सो समझो तुम, तो समझो एक डेप्थ वाला अरे, वही मैं कोड में तुम्हें दिखाऊंगा। एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। हाँ, सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमारे पास एक डेप्थ वाला है जो ऐसा चीज़ें रिटर्न करेगा, डेप्थ ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो थ्री, सो टू। बेसिकली हाइट ऑफ थ्री माइनस वन, ठीक है, तो टू। तो सिमिलरली क्या आंसर होगा? आंसर ऑफ टू, इसको तो तुमने काट दिया है, और जैसे मैंने बोला था काटे वाला, लाइक जो कट जाएगा विल नॉट बी काउंटेड एज सेव्ड, राइट? तो आंसर टू प्लस डेप्थ ऑफ थ्री, जो डेप्थ ऑफ थ्री का एक्चुअल वैल्यू क्या है? टू, क्योंकि सिक्स और सेवन फिर सेव हो गए, राइट? और अदर ऑप्शन क्या है कि मैं थ्री को काटूंगा, कि मैं थ्री को काटूंगा प्लस डेप्थ ऑफ टू, प्लस डेप्थ ऑफ टू। यही कोड है। अभी सेम चीज तुमने देखो आंसर वन निकाला, तो सेम फंक्शन, सपोज आंसर एक फंक्शन है, ठीक है, तो यही आंसर वन के लिए अभी तुम्हें, तो तुमने क्या बोला, अगर मैं आंसर वन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे इस सब प्रॉब्लम का नीड पड़ेगा कि आंसर व्हाट इफ टू इज इन्फेक्टेड, तो वो तुम्हें अलग से रिकर्जन में सॉल्व करना पड़ेगा, करते 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 लीफ नोड का एक बेस केस लिखेंगे हम लोग। सो दिस इज द होल लॉजिक। आंसर ऑफ टू, सपोज टू इज इन्फेक्टेड, मतलब मैंने तो इसको इन्फेक्ट नेम किया है, तो तुम्हें और इजीली समझेगा कोड में। तो इन्फेक्ट वन इज मैक्स ऑफ इन्फेक्ट द टू वाला डेप्थ ऑफ थ्री प्लस इन्फेक्ट द थ्री वाला डेप्थ ऑफ टू। सिमिलरली सब प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 तुम्हें उसका आंसर मिलेगा। सो नाउ इफ वी मूव टू द कोड पार्ट, सो मैंने ये देखो यहाँ क्या लिया है। पहले मैंने एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्म में अपना अरे रीड किया है, ठीक है। एडजेसेंसी मतलब बाइनरी ट्री का क्या लॉजिक था, एन नोड्स होते हैं और मतलब एन नोड्स होते हैं और एन माइनस वन एजेस होते हैं। सो वही इतना पार्ट तो बस रीडिंग द ग्राफ है। फिर वही जो मैंने तुम्हें डेप्थ वाला अरे बताया था, डेप्थ में क्या स्टोर था कि उससे नीचे कितने, लाइक यहाँ पे क्या था, डेप्थ ऑफ थ्री इज टू, डेप्थ ऑफ सिक्स क्या होगा, डेप्थ ऑफ सिक्स होगा वन, उसके नीचे कितने, डेप्थ ऑफ वन क्या होगा, डेप्थ ऑफ वन क्या होगा, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः एलिमेंट्स है, तो तुम्हारे नीचे कितने एलिमेंट्स हैं? तो ये भी डीएफएस से इजीली मिल जाएगा, ठीक है, वो कोड में आई विल शो यू। तो पहले हम एक सी एम लाइक कैलकुलेट डेप्थ वाला कोड देखते क्या कर रहा है। सो कैलकुलेट डेप्थ वाला कोड कुछ नहीं कर रहा, सिंपली इसका मुझे नीड नहीं है शायद लीफ का, हाँ, फालतू कंफ्यूजन। हाँ, कैलकुलेट डेप्थ क्या कर रहा है, मैं हर नोड के नीचे जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें, ठीक है, इसका एक सिमुलेशन बता देता हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस। सो और डेप्थ वाला कोड कैसे काम कर रहा है, जस्ट शो यू, लाइक वो बहुत जगह काम आता है डेप्थ वाला कोड। ठीक है, सो और जैसे सपोज ये वन नोड, ये सेकंड नोड और ये थ्री नोड, सो इसका डेप्थ चाहिए, इसने इसको कॉल किया, टू ने वापस रिकर्जन चल रहा है, तुम देखोगे तो मैं हमेशा एक कैल्क डेप्थ बार बार रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सपोज, ओके, कहाँ गया कर्सर, ओके, कर्सर क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है, वन सेकेंड। हाँ, तो सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो तुम अगर देख रहे होंगे तो मैं बेस केस में जब तुम्हारा लीफ आएगा वो इसके अंदर जाएगा नहीं कभी, क्योंकि उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, राइट? तो हमेशा डेप्थ ऑफ करंट प्लस वन रिटर्न करेगा। इसका तो जीरो ही रहेगा ना, सपोज मैं इसको नेम कर देता हूँ 1 2 3
4 5, व्हाट वुड बी डेप्थ ऑफ 4 एंड 5? डेप्थ ऑफ 4 एंड 5 तो जीरो हुआ ना, उनके नीचे कोई नहीं है, डेप्थ ऑफ 4 जीरो, तो लीव का तो डेप्थ जीरो ही रहा, डेप्थ ऑफ 5 इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो वो दोनों का डेप्थ जीरो हो गया, बट वो रिटर्न करेंगे 1। तुम अगर देख रहे हो यहाँ पे तो वो लोग रिटर्न करेंगे +1, तो ये रिटर्न करेगा 1, ये रिटर्न करेगा 1। और मैं कोड में क्या कर रहा हूँ, आई एम एडिंग, मैं अपने चिल्ड्रन का ऐड कर रहा हूँ, एंड दैट वुड बी माई डेप्थ। तो मेरा डेप्थ हो गया 2, है ना। डेप्थ ऑफ 3 क्या हुआ, डेप्थ ऑफ 3 क्या हुआ, डेप्थ ऑफ 4 प्लस डेप्थ ऑफ 5 का +1। तो डेप्थ ऑफ 4 +1 प्लस डेप्थ ऑफ 5 +1, वो लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, 1 1 रिटर्न कर रहे हैं, तो डेप्थ ऑफ 3 2 हो गया। ये रिटर्न करेगा 3। तुम देखो ध्यान से, मैं हमेशा +1 रिटर्न कर रहा हूँ, और जो पेरेंट नोड है वो सबका ऐड कर रहा है। ये तुम्हें आता भी होगा, बट ठीक है 3। ये क्या रिटर्न करेगा, 1। ऐड करोगे क्या आएगा, 4। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, ये था नॉर्मल डेप्थ। कैसे हम कैट, बेसिकली डेप्थ नहीं, डेप्थ -1 बोलो फॉर यू, फॉर बेटर समझने के लिए, डेप्थ ऑफ। ठीक है, तो ऐसे में डेप्थ मिल गया, तो अभी मेरे पास ये वाला अरे रेडी है कि मेरे नीचे कितने एलिमेंट्स है, वो वाला कोड मेरे पास रेडी है। ये बार अच्छे से तुम इसका ड्राई रन भी कर लेना इफ़ यू वांट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा। अभी एक बार मेरे पास वो बन गया, तो मैं उसको यूज़ करूँगा अपना इन्फेक्ट वाला फंक्शन रन करने। और इसमें डीपी कहाँ पे रोल पे आ रहा है वो मैंने बोला ही नहीं। तो सपोज बहुत बड़ा ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ऐसे देन ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जब तुम ये वाला रन कर रहे थे ना, इन्फेक्ट 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 वाला पार्ट, तो बहुत जगह अलग अलग केसेस बन रहे थे। तुम इसको इन्फेक्ट कर रहे थे, तुमने जब इसको इन्फेक्ट किया था, तुम्हें पता है कि नीचे नीचे कुछ ना करके ये कॉल हुआ होगा, है ना। इसने सपोज फिर ये डिसाइड किया, इसने फिर लेफ्ट डिसाइड किया होगा, इसने ये डिसाइड किया होगा, ये कॉल हो रहा होगा। और वापस भी अगर ये इन्फेक्ट हुआ होता तो ये भी घुमा फिरा के इसको कॉल करता। मतलब ये जो है, सपो ये सी टेस्ट नोड लिया, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वही नीचे वाला। तो ये जो है ये बहुत बार कॉल हो रहा है, हमें वो वाला आंसर कि व्हाट इफ दिस टेस्ट नोड इज इन्फेक्टेड वो बहुत बार चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए भी चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए भी चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो सब नीचे 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 डीएफएस रन हो रहा है ना, जो मेरा डीएफ इट्स बेसिकली डीएफएस डीपी क्वेश्चन। तो डीएफएस रन हो रहा है, तो मुझे टेस्ट नोड का आंसर बार बार नीड पड़ रहा है। तो इससे अच्छा इसको मैं स्टोर क्यों ना कर दूं कहीं। सो वहाँ पे डीपी यूज़ आएगा, तो तुम जब भी किसी नोड का आंसर कैलकुलेट कर देते हो ना, उसका डीपी में स्टोर कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है वो बार बार रिक्वेस्ट आने वाला है उस पर्टिकुलर नोड का, वो ट्री कर 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 करके वापस वहीं पे आने ही वाला है, बार बार उसका आंसर नीड पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस हमेशा स्टोर कर देना डीपी में। तो अभी कोड रन किया, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया होगा शायद। तो मैं एक इनफेक्ट कोड बताता हूँ, ठीक है, एक इनफेक्ट कोड कैसे रन हो रहा है। तो उसके लिए पहले एक सिंपल डायग्राम बना देते हैं। तो ठीक है, ये एक सिंपल बेसिक डायग्राम। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसके सारे चिल्ड्रन कौन कौन है, उन सबका नंबर ले आ रहा हूँ। तो सपोज ये 1 है, तो ये 2 3 है, तो मेरा जो सी है मैंने बनाया ना, उसमें कुछ ऐसा स्टोर रहेगा, 2 3 चाइल्ड। ठीक है, चिल्ड्रन बेसिकली। अभी मेरा अगर चिल्ड्रन साइज 0 है, सॉरी, अगर मेरा चाइल्ड का साइज 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जिस करंट नोड में वो इन्फेक्टेड है, हाँ, वो कंपलसरी है। तुम अगर देखोगे भी तो मैं इनफेक्ट वन कॉल कर रहा हूँ, वो इन्फेक्टेड नोड है। तो अभी अगर मेरे चिल्ड्रन का साइज ही 0 है, मतलब मैं लीफ नोड हूँ, राइट। और अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैं लीफ नोड हूँ, तो पॉइंट क्या है, तुम किसी को बचा ही नहीं रहे, तुम्हारे नीचे कोई है ही नहीं जिसको तुम कट या कुछ इन्फेक्ट या कुछ करोगे, तुम 0 रिटर्न कर दो, कुछ पॉइंट नहीं है तुम्हारा। सपोज ये 3 के नीचे कोई है ही नहीं ना, तो 3 अगर अगर 3 अगर इन्फेक्ट हो गया तो गेम ओवर, तुम कुछ नीचे कर नहीं सकते और एक्स्ट्रा। तो वो कोड था। और ये बेसिकली तो मैं अगर डीपी का वो मेमोराइजेशन पार्ट पता होगा, तो हम बेसिकली चेक करें कि क्या हमारे पास इस करेंट नोड का आंसर ऑलरेडी है। अगर है तो वही रिटर्न कर दो, वापस क्यों कैलकुलेट करना है, वही डीपी में मेमोराइजेशन किया है हमने। अभी मेन आंसर कैलकुलेट करते। और एक चीज़ है, अगर मेरा एक ही चाइल्ड है, सपोज ऐसा कुछ पेड़ होता 1 कनेक्टेड टू 3, तो मैं इसको इन्फेक्ट क्यों करूँगा, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ ऑलरेडी तो मैं इसको काटूंगा ना, है ना। मैं इसको ऑब्वियसली कट करूंगा और फिर वहाँ पे गेम खत्म। सपोज यहाँ पे 3 के नीचे 4 होता और 4 और 3 इन्फेक्ट हो जाता, तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करूंगा, इसको काटूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑल्टरनेटिव तो नहीं है। मैं एक ही, लाइक आई एम अ सिंगल चाइल्ड, 4 इज माई सिंगल चाइल्ड, तो आई विल बी सिंपली कटिंग, और कोई बच नहीं रहा बेसिकली। तो मतलब सॉरी, कोई बच नहीं रहा, मैंने गलत बोल दिया। मैं मतलब ऐसा एग्जाम्पल लो, 1 है और यहाँ पे 2 है, और 2 के नीचे बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुत डेंस ट्री है इसके नीचे। तो अगर मेरा 1 इन्फेक्ट हो गया,
तो बस ये खत्म। तो ऑल आई नीड इज कि तू तेरे कितने लोग हैं वो सब बच जाएंगे, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मेरा एक इन्फेक्टेड था और मैंने उसे कट कर दिया। तो यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट में तो कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ है ना, क्योंकि लेफ्ट वाला नोड ही नहीं है, एक ही सिंगल चाइल्ड है, सी डॉट साइज इज 1। तो सिंपली गिव मी द आंसर ऑफ कि तेरा कितना डेप्थ है, उसका मेरे को तू आंसर दे दे। दैट इज दी वो। एक मिनट, यहाँ मैंने डेप्थ ऑफ करंट माइनस वन क्यों लिखा है, एक मिनट। सपोज अगर ये होता वन, ये होता टू, ये होता थ्री। एक मिनट, मैंने शायद डेप्थ ऑफ टू में टू स्टोर्ड है, ये कटा। ओके सो डेप्थ ऑफ करंट माइनस वन, राइट। डेप्थ में लेट मी सी एक बार क्या सेव हो रहा है डेप्थ पे। ओके, ऑफ सी जीरो। अगर मेरा एक ही चाइल्ड है, लेट्स जस्ट ड्राई रन दिस वंस, अगर मेरा यहाँ पे टू है और इसके नीचे बहुत लोग हैं, सपोज इसके नीचे चार लोग हैं, तो यहाँ पे फोर स्टोर्ड रहेगा। हाँ, यहाँ पे फोर स्टोर्ड रहेगा, राइट। तो वन कटा, एक मिनट। अच्छा ठीक है, यहाँ डेप्थ ऑफ करंट है। ठीक है, डेप्थ ऑफ करंट है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, सॉरी थोड़ा मिसअप हो गया। तो उसका मतलब क्या है, एक मिनट। वो माइनस वन करना ही पड़ेगा। सपोज तुम्हारा एक वन था, नीचे टू है, सिंगल चाइल्ड का केस, ठीक है। ये करंट नोड ये है, हाँ, सी यू आर आर ये है। इसका एक चाइल्ड है करंट, पता है ना, सी इज मेरे चाइल्ड और करंट इज बैक खुद का नोड। तो सी यू आर एक कहाँ गया, अरे यार ये कर्सर क्यों गुम हो जा रहा है। हाँ, तो सी यू आर आर वन है। तो सी यू आर आर का वैल्यू क्या होगा, इसके नीचे कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच, सी यू आर आर का वैल्यू फाइव होगा। आंसर क्या होगा, डेप्थ ऑफ सी यू आर आर दीज फाइव नोड्स माइनस ये तुमने कट किया है, तो इसलिए वो मैंने माइनस वन फोर लिखा है कि डेप्थ ऑफ करंट इसके नीचे पांच नोड, उस पांचों के पांच सेव नहीं हो रहे, एक तो काटना पड़ेगा। तो वो काटा और ये चार बच गए, इसलिए डेप्थ ऑफ सी यू आर आर माइनस वन। यहाँ पे तुम डेप्थ ऑफ सी ऑफ जीरो भी लिख सकते थे, एक ही है ना, तो डेप्थ ऑफ चाइल्ड भी चलता। यहाँ पे वही जो मैंने तुमको समझाया था, इन्फेक्ट करो तुम्हारा लेफ्ट वाला नोड, राइट वाले का वो ऐड करो डेप्थ जो उसका हाइट माइनस वन, और दी ऑल्टरनेटिव केस इन्फेक्ट करो राइट वाले को, और इस वाले में कितने नोड्स है नीचे वो ऐड करो। तो ये दो केस में से जो भी मैक्स आ रहा है उसको बस डीपी में स्टोर कर देना। सो ये अब ये सेम चीज़ हर चीज़ के लिए रन होती होगी, एंड फिर वहाँ पे लास्ट में लीफ आ जाएगा, लीफ का तो हमें केस पता है, रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा। सो यही था पूरा कोड, एक बार ड्राई रन कर देना, बहुत सिंपली वे में लिखा है। सी हमेशा चाइल्ड स्टोर कितने चिल्ड्रन है वो स्टोर कर रहा है, और ये डेप्थ वाला कोड पढ़ लेना एक बार। डेप्थ बेसिकली समझ गया ना क्या स्टोर कर रहा है। अगर ये थ्री है और ये फोर है और ये फाइव है और ये सिक्स है, तो थ्री में थ्री स्टोर रहेगा, फोर नहीं स्टोर रहेगा। बहुत क्वेश्चंस आएंगे ना तुम्हें फोर स्टोर करना होगा, तो तुम प्लस वन वगैरह देख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू।